So now we'll start off with dihybrid inheritance. What do you understand by what's the difference between monohybrid and dihybrid? So in monohybrid, there was only one gene being Hmm. worked on. However, in dihybrid inheritance, there's going to be two genes in this case Good, good job. because, yeah. Exact. ठीक है. Hybrid meaning different and di meaning two different genes. एक अब हम जैसे हमने पहले एक एक जीन को स्टडी किया, डिजीज है नहीं है, ब्राउन हेयर कलर है नहीं है. अब हमने देखना है ब्राउन कलर भी हो और हाइट, और दूसरे में ब्राउन कलर और हाइट दोनों को एक साथ साथ देखेंगे. So far, you have looked at the inheritance of the alleles of just one gene. Now you will consider the inheritance of two different genes. We call this as dihybrid inheritance. Let's return to the example of rabbit coat color, जो कि कैपिटल बी और स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल बी फॉर डार्क ब्राउन एंड बी फॉर व्हाइट फर. एंड नाउ कंसिडर द ईयर लेंथ एज वेल, जिसमें हम एलील यूज करेंगे. कैपिटल ई वुड बी यूज फॉर लॉन्ग लेंथ एंड स्मॉल ई इज यूज फॉर शॉर्ट ईयर्स. So each year length, E for long years and E for short years, where allele E is the dominant and small e is the recessive. आपके पास ये different combinations बन जाते हैं. You have a total of how many combinations है? ये 10 बनते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. You have a total of 10 combinations. कैसे? एक आपने बी भी होता है एक लील, एक होता है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक होता है स्मॉल बी स्मॉल बी, इस तरह एक कैपिटल ई. ठीक है. उसी के बाद कैपिटल ई स्मॉल ई, और उसके बाद स्मॉल ई स्मॉल ई. तो जितने इनके आपस में कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इस तीनों का इसके साथ, फिर इन तीनों का इसके साथ, फिर इन तीनों का इसके साथ. These are the different combinations that we have produced from the genotype and the phenotype. Notice how the genotypes are written. First, you write the genotype for one gene and immediately followed by the genotype for the second gene as well. उसी तरह पे. Now consider the gametes that can be produced by a rabbit with the genotype BBEE. इसका phenotype क्या होगा? Can you tell me? Capital B small b, capital E small e. So it's going to have brown fur and long Oh, ears. good job. ठीक है. So इस तरह अब ये सारा कैसे होंगे, और how is this variation produced? How are they behaving entirely independent of each other? Because at the end of meiosis, the rabbit will produce four types of sperms or eggs. Half of them will receive allele B for coat color, half of them with B. जैसे हमने उस दिन heterozygous वाली की थी ना, तो आपको 3:1 वाली रेशो बनी थी. इसी के अंदर भी we are going to cross these two with each other. जैसे कि I am going to cross BB with EE. तो आपके पास ये चार पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं when you react them. Notice, just as for monohybrid cross, the gametes have only one copy of gene and you write the alleles of the two genes next to each other. तो जो ये वाला मैंने काम किया, this is exactly what I've done previously as well. जैसे हम monohybrid के अंदर करते थे, वही काम मैंने इसी को दो हिस्सों में, दो gametes में डिवाइड करके क्रॉस कर दिए. लेकिन अगर हम इसको डिवाइड ना करें, we are going to form inheritance of two genes. हम दोनों जीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर लिख लेते हैं और दोनों पेरेंट्स के लिख लेते हैं. पहले हमने एक का सिर्फ सॉल्व किया था ना, दूसरा भी साथ ही लिख दो, और उसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन है हमने वो भी लिख दिए हैं. देन यू आर गोइंग टू मेक अ पनेट स्क्वायर. यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक होमोजाइगस रिसेसिव था, तो वो ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस बन चुके थे, दूसरे भी उसकी कॉपी बन जाते हैं ना, दो दो आ जाते हैं. पनेट स्क्वायर में यू कैन add the gametes for one parent on the column and one on the period, and then you can make all of the possibilities. यहाँ पे you have 8 possibilities, जिसमें से you have seen that 3 were having the brown coat, 3 brown coat long ears, 3 of them were brown coat short ears, one was white coat long ears, and one was white coat short ears. So different combinations, and one of the combination would come in the paper. जो बहुत कॉमन आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन, वो आपके पास आएगा 9:3:3:1. जो हम आगे एक heterozygous डोमिनेंट रिसेसिव डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर कवर करेंगे. 9:3:3:1. ये तो आई गेस मेरे पास बनता है 3:3:1:1 बनता है. ठीक है. दिस इज द 3:3:1:1. नाउ फॉर द पेरेंट फिनोटाइप, जिसके पास एक heterozygous डोमिनेंट था और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव एलील था फॉर years, only two types of gamete can be produced and you therefore need to only show these two types. You do not need to write down one down twice, and if you do that यू विल नॉट गो रॉन्ग. बट आपका पनेट स्क्वायर भी ट्वाइस एज बिग हो जाएगा और फजूल का बड़ा होगा, लेकिन आप जब उसको सिंप्लीफाई भी करोगे ना, तब भी रेशो जो आपके पास है ना, वो 3:3:1:1 ही बनेगा. So you have to take great care when writing the genotypes in the Punnett square. Always write the two alleles of one of the genes followed by the two alleles of the second gene, and don't mix up these B's when you're making a dihybrid cross.
जैसे एक टोमेटो प्लांट्स का करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन जो अब हम करने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल A is for purple stem, small a is for green stem, and capital D is for cut leaves, small d is for potato leaves, ठीक है। हमने इनका क्रॉस करना है, एंड वी आर पेरेंटल फिनोटाइप्स के अंदर वी हैव बोथ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और यहाँ पे दोनों होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स हैं। तो अगर अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि मैंने ये वाले लिखने, क्वेश्चन में लिखा होगा एक पेरेंट है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैविंग पर्पल कट लीव्स, तो आपको पता लग जाएगा पहली बात तो हेटेरोजाइगस है। पर्पल कट लीव्स से आपको समझ नहीं आएगा, पर्पल कट लीव्स तो आपके पास कैपिटल ए कैपिटल और कैपिटल डी भी हो सकते हैं। बट जब मैंने कहा ना हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है वो भी पर्पल और कट, लेकिन एक एक उनमें रिसेसिव भी आता है। सो दिस इज हाउ यू फर्स्ट गेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो आप पास पेपर्स करोगे, दिस टिप इज गोइंग टू हेल्प यू देयर एज वेल। यहाँ पे व्हेन वी ड्रू द पनेट स्क्वायर, आपको दूसरे पेरेंट से एक ही कॉम्बिनेशन बना, और कोई बन ही रहता, क्योंकि यहाँ पे क्या आप 4 दफा एडी लिख देते, वो आपका सिर्फ पनिट स्क्वायर के टेबल और बढ़ा देता। अदरवाइज उसने भी सिंप्लीफाई होना था इनटू 1:1:1:1 के अंदर ही। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। और याद रखें इन तीनों में से ही एक ही आती है हर साल, एंड इट कैन बी एनी वन। तो आप तीनों पॉसिबिलिटीज की याद कर लो कि एक में आपके पास 4 गेमीट्स बन रहे हैं तो दूसरे में 2 बन रहे हैं, इस वाले में आपके पास पहले में 4 बने हैं तो दूसरा में 1 बना है। तो वहां से अगर आप रेशो भी रट्टा लगा लो, नथिंग इज रॉन्ग विद इट, क्योंकि वही आनी है आपके हर क्वेश्चन के अंदर। या आपके पास ये पहला कॉम्बिनेशन आ जाएगा विच इज 3:3:1:1, या अगर आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ जाएगी और साथ आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव आ जाएंगे दोनों एलील, तो आपने याद रख लो वैसे ही कि 1:1:1:1 आता है। ये मुझे तसल्ली मिलती थी कि यार मैं पेपर में ना सवाल ठीक करके आया, क्योंकि मेरी रेशियो यही आ रही होती थी, एंड आई हैड रिमेंबर्ड दैट दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज। बट अगर हम अब दो टोमेटो प्लांट्स को क्रॉस करें दैट आर बोथ हेटेरोजाइगस एट बोथ लोकाई, मतलब कि इसी तरह का एक और के साथ अगर मैं इसको क्रॉस करूं वो भी ऐसा ही हो, अब आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी 4 गेमीट प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर भी 4 गेमीट प्रोड्यूस होंगे, सच लाइक दिस। समझ आई? दिस इज द Okay. थर्ड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन सी। और यहाँ पे आपका जो पनेट स्क्वायर है इट इज सच अ बिग, यहाँ पे आपका जो रेशियो आएगी दैट इज 9:3:3:1, एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द एग्जामिनर। यहाँ पे द एक्सपेक्टेड phenotypic ratios are there for 9 purple stem cut leaves, 3 purple stem potato leaves, 3 green stem cut leaves, and 1 green stem potato leaves, and it is the typical of a dihybrid cross। और ये कब होगा? जब दोनों पेरेंट्स heterozygous हैं। heterozygous तो ये भी हो सकते थे, AADD ये भी तो heterozygous है नहीं, एट बोथ लोकाई, ये वाला लोकाई भी, एक लोकाई पे एक ही जीन होती है ना, तो आपके पास यहाँ Yeah. पे कितने लोकाइज होते हैं? 2 लोकाई। heterozygous बोथ लोकाई, दूसरा भी लोकाई heterozygous है, मतलब कि इस तरह करके, और दोनों पेरेंट्स ऐसे ही हैं। समझ आई? ये Yeah. लोकाल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस, ये क्वेश्चन में आपको देगा नहीं, बना के याद रखो, ये कोई नहीं आपको देने वाला, ये नहीं देगा कोई। आपको ये टर्म्स आती होंगी, व्हाट इज होमोजाइगस, व्हाट इज रिसेसिव, वो तो ये भी हो सकता, लेकिन एट बोथ लोकाई, ये भी दोनों हेटेरोजाइगस, ये भी दोनों हेटेरोजाइगस। फिर कौन से हेटेरोजाइगस? ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस का मतलब ही क्या है? डोमिनेंट, क्योंकि हेटेरोजाइगस में आपको पता है एक डोमिनेंट वाला आना तो ओवरऑल भी डोमिनेंट ही होगा, ठीक है। homozygous recessive at all locais, ये homozygous recessive at only one loci, लेकिन दूसरे पे heterozygous। समझ आई? द फर्स्ट Yeah. पॉसिबिलिटी, द सेकंड वन, एंड द थर्ड वन। तीनों का एक एक में सवाल भेजूंगा आज, वो ड्रॉ करना है मुझे, भेजना है आपका, पक्का हो जाए। Epistasis is a process where two different genes on the different chromosomes affect the same feature. The alleles of one gene affect the expression of the other as well. We call it epistasis. For example, in the inheritance of feather color in chickens, there is an interaction between two gene loci, FF और GG में. The GG determines whether or not the bird produces colored feathers. अब epistasis क्या है और ये क्यों आता है और किस स्टेज पे आ जाता है कि ये लोकाय दूसरे लोकाय को तंग करे? क्यों भाई? तेरा काम है कि कलर्ड फेदर्स होंगे, तू इस वाले पे क्यों आ रहा है कि किस टाइप के होंगे, किस कलर के क्यों होंगे? अपने अपने लोकाय पे फोकस करो। मैंने कहा था कि तू टॉल क्यों और मेरे पास वो कलर क्यों है, अब अफेक्ट आ रहा है, इसको एपिस्टेसिस कहते हैं। और ये व्हाट डू यू थिंक, ये एपिस्टेसिस
एट एनी स्टेज ऑफ मायोसिस किस जगह पे हुआ होगा वैसे, जो एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं? Crossing over? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्रॉसिंग ओवर के अंदर हुआ होगा। क्रॉसिंग ओवर में लोकाइज भी तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं। लोकाय होता क्या है? अगर मैं एक क्रोमोसोम यहाँ पे The ड्रॉ, position on a gene. पोजीशन ऑफ अ जीन, एग्जैक्टली यहाँ पे है। तो अगर ये एक और क्रोमोसोम जो साथ वाला है, उसके भी इधर के साथ इंटरेक्ट करे, तो इन दोनों के एक दूसरे पे अफेक्ट आएगा। वो है बेशक टॉल या शॉर्ट का जीन, अफेक्ट वो क्या कर रहा है कि उसके फेदर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। तो here you can see these were the different genotypes and possible phenotypes that are grand produced। ये भी आपके पास टोटल आ गए हैं। ठीक है। और इस तरह करके एपिस्टेसिस के बारे में बस यू शुड नो कि यहाँ भी फिनोमेना वही है कि अगर आपके पास डोमिनेंट एलील है कैपिटल एफ का, तो वो साथ वाले के जो जी होगा लेट्स से, ठीक है, वो उसका भी प्रोड्यूस काम होने नहीं देगा अगर आपके पास यहाँ पे दोनों डोमिनेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द इनहेरिटेंस ऑफ फेदर कलर इन चिकन्स, द इंटरैक्शन बिटवीन टू जीन लोकाई ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम, द जीन जी जो है वो बता रहा है कि कलर्ड फेदर्स होंगे या नहीं। ठीक है। कैपिटल जी बताएगा कलर्ड फेदर्स होंगे, स्मॉल जी कहेगा नहीं होंगे। However, this is also affected by the gene FF। अगर FF बोल पड़ा, अगर FF कहीं पे डोमिनेंट हो गया, तो G डोमिनेंट हो या ऐसे, वो it won't make any difference as well। Got it? Okay. What is the meaning of autosomal? Any other chromosome besides the sex chromosome? When two or more gene loci are on the same chromosome, they do not assort independently। क्यों? अब आपके पास ऐसा है, ये दो बाइवेलेंट थे ना मियोसिस में, जिन दो जीन्स की बात कर रहा हूं ना, वो मसला ये है कि दोनों एक ही पे हैं। तो यू टेल मी, अगर ये क्रॉस ओवर करें भी तो वुड दैट अफेक्ट? Mm, not sure. I don't नहीं know. करेंगे, क्योंकि दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं। इससे कोई मिक्स Yeah. हो गया नहीं। वहां ऊपर वाले में क्या था, टॉल शॉर्ट का एक पे तो कलर का एक पे, वहां पे एपिस्टेसिस हो रहा था ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे नहीं होगा। दे आर इंडिपेंडेंट। दे डू नॉट सॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन meiosis एज दे वुड हैव इफ दे वर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर डिफरेंट पे होता तो एक्सचेंज होता, भाई अपने अंदर ही एक्सचेंज वो क्यों करेगा? These genes are said to be linked। They stay together in same combinations as in parents and they are said to be linked। For example, अगर फादर का हेयर कलर और आई कलर वाला जीन एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है, तो अगर बच्चे के अंदर हेयर कलर ब्राउन आता है तो आई कलर भी एग्जैक्ट वही आएगा जो फादर का है, क्योंकि हेयर कलर और आई कलर वाला जीन एक तरह से कोइंसिडेंटली वाज ऑन द सेम क्रोमोसोम। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम पे है, तो फिर देर आर चांसेस ना 25%, 50%, 75%, तब चांसेस होते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में वो इधर उधर हो सकते हैं। जब है ही एक क्रोमोसोम पे, तो आपको तो पता है कि अगर एक ही क्रोमोसोम पे है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो इस पूरे को ही उतार के लेके जाएंगी ना, ऐसे करके। और वो दोनों जीन भी उसी के ऊपर लगे रहेंगे, तो बच्चे में वो दोनों जीन्स आ जाएंगे। वी सेड दैट दीज जीन्स आर लिंक्ड। समझ आई? Okay. Good. Autosomal linkage involves the autosomes। This is when all the chromosomes except the sex chromosomes, क्योंकि sex chromosomes तो आपके disease link, sex link disease and determining the gender में help करते हैं। For example, the fruit fly Drosophila normally has a stripped body and antenna with a feathery arista। The gene for body color and the gene for antennal shape are close together on the same chromosome। We say that they are linked together। Epistasis is the interaction of two genes at different loci. One gene may affect the expression of the other. And autosomal linkage is the presence of two genes on the same autosome, so they we tend to inherit it together and do not assort independently। ना उनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकेगी। A black body with no stripes results from a recessive allele called ebony। अब ये जो, और recessive allele for antenna उसको हम कहते हैं रिस्टोपीडिया। तो वो आपके पास ड्रोसोफिला ऐसा बनेगा कि उसकी बॉडी भी ब्लैक होगी, ठीक है, उसकी स्ट्राइप्स भी नहीं होंगी, और उसका एंटीना भी जो होगा वो एंटीना लुकिंग ड्रोसोफिला आपके पास प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बॉडी कलर जीन्स हैं, इसमें कुछ समझाने वाला खैर है नहीं ज्यादा। इट्स द सेम थिंग अगैन। वी हैव दिस एलील फॉर स्ट्रिप बॉडी, एबनी बॉडी, नॉर्मल एंटीना, एरिस्टोपीडिया एंटीना। ये आपके पास पेरेंट फिनोटाइप्स है। यू विल बी गिवन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपको बताया कि दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, बोथ जीन्स वर होमोजाइगस डोमिनेंट। तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। या आपको ये बताया होगा इन्फॉर्मेशन कि यू आर क्रॉसिंग अ मेल with striped body and normal antenna with a female with an ebony body with Astropedia antenna। तो उसमें यही पॉसिबिलिटी बनती है, जो आपके पास दोनों ट्रेस जो हो वो डोमिनेंट डोमिनेंट हो और एबनी बॉडी और एस्ट्रोपीडिया एंटीना चाहिए,
तो आपके पास स्मॉल ए और स्मॉल ई वाली ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये आपके पास गेमीट्स आ जाएंगे। ठीक है, दो तो है ना, कॉमन है, तो एक एक कैंसिल आउट कर दो, एक ही जैसे, तो दो प्रोड्यूस होंगे। सिंपल पनेट स्क्वायर होगा। और जितने भी उसके फिनोटाइप्स होंगे, जितने मर्जी आप फिनोटाइप्स कर लो, 100% ऑफ देम वुड हैव स्ट्राइप बॉडीज, लेकिन नॉर्मल एंटीना, क्योंकि वो क्या थे, डोमिनेंट। गॉट इट। Yeah. अब ये तो थी F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है, अब ये जो प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको दोबारा से रिएक्ट करवाते हैं। किसको, F1 जनरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड, ये है F1 जनरेशन, इज क्रॉस विद द फीमेल विद द एबनी बॉडी एंड एरिस्टोपीडिया। वैसी ही फीमेल जो आपके पास उस वाली मदर से आई थी, उसी तरह की एक फीमेल के साथ अगर आप क्रॉस करवा दो इस जनरेशन को, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 50%, 50%। कैसे, 50% वुड बी स्ट्राइप बॉडी नॉर्मल एंटीना एंड 50% वुड बी एबनी बॉडी एरिस्टोपीडिया। गॉट इट। Yeah. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 F2 जनरेशन, ये मोनो हाइब्रिड के अंदर भी आया था, क्या मतलब होता है F1 F2? So the so in the F1 generation, it is the first generation in which like हमारे पास दो like alleles like crossover हो रहे हैं एक दूसरे से, and then the F2 generation is a combination of the F1 generation. So basically a repetition of the F1 generation just into F2. Autosomal linkage and crossing over. Complete linkage between genes on the same chromosomes is very rare. एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कैसे हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम तो स्वैप ओवर ईच अदर करते हैं, उनमें एक चैचमेटा भी फॉर्म होता है, लोकाई एक्सचेंज होते हैं, एक वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाती है समटाइम्स, लाइक यू कैन सी ओवर हियर। Alleles from one homologous chromosome can therefore change places with the alleles from the other as well during prophase। जब आपके पास बाइवेलेंट्स बन रहे होते हैं, उनमें चैचमेटा फॉर्म होता है, या जिसको आई गेस वीडियो में साइनैप्स का भी नाम दिया था। क्रॉसिंग Yeah, ओवर, synapses. it breaks the linkage between genes on the same chromosomes. Unusually, in male Drosophila, no crossing over takes place. No one knows why. Crossing over does, however, take place in female Drosophila, but उसके अंदर उसके जीन का लोकाई चेंज नहीं होता है। अगेन फर्दर रिसर्चेस हैज बीन डन कि वो क्यों नहीं होता। उसकी वजह ये थी कि we had a copy of genes on both of the chromosomes के both of the loci। तो अगर क्रोमोसोम इधर उधर हो भी रहा था उसका जीन क्रॉसिंग ओवर में, तो उसके पास ऑलरेडी बैकअप होता था, और वो जो बैकअप लोकाई होता था, सेम जीन वाज देयर एज अ बैकअप, वो हमेशा डोमिनेंट निकलता था। सो दैट इज व्हाई दे ऑलवेज हैड द सेम जीनोटाइप, चाहे जितनी भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए। आपने ड्रोसोफिला की दोनों टाइप्स ऊपर देखी हैं, या 100% या 50%, देयर आर नॉट मेनी types as well due to the dominancy by some of the characteristics। So this is how the crossing over takes place. This is a diagram where you can see most of the offspring of this cross have their parents in combination of characteristics, either stripped body या normal antenna ही mostly body होंगे, या फिर ebony body aristopedia antenna। We call this the parental types, जो कि 1:1 ratio में थे। अगर linkage complete हो जाती है, you would expect all of the offspring to be like this, which is exactly that happened in the test cross as well। वहां पे हमने देखा था 100% सारे क्या आए थे, normal or striped। But when the female is involved in a test cross, along with the F1 generation, ठीक है, फीमेल में आते रिसेसिव भी, वहां पे we had different combinations। Some have striped body in Astropedia and some have ebony body in Normandy ना, वहां पे 50-50 वाला आपके पास सीन आ गया था। These are known as recombinants। Recombinants क्या होते हैं, they result from crossing over which recombines the characteristics of the original parents। अगर आप सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले क्रॉस ओवर कर दोगे, ई ए, इसमें क्रॉसिंग ओवर में क्यों कोई वैरायटी आपके पास प्रोड्यूस होगी। बट अगर आप उस आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन से आया था, उसको आप एक सेकंड जनरेशन वाली फीमेल के साथ क्रॉस ओवर करवाओ, अब ऑब्वियसली रिकम्बिनेंट्स आएंगे। रिकम्बिनेंट्स आर लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस्ड। कॉम्बिनेंट्स कॉम्बिनेशन से निकला है। अब यहाँ पे हाँ 50% एक रिकम्बिनेंट है, 50% एक कॉम्बिनेशन है, तो देर वुड बी, तो वो आपके पास फिर 1:1 के अंदर आ जाते हैं, या 50-50 कह लो उसको, जिसमें यू कुड सी कि स्ट्राइप बॉडी नॉर्मल एंटीना, एबनी बॉडी एस्पिडिया एंटीना, मतलब कि स्ट्राइप बॉडी ओवरऑल कितने थे, 44+6, वो भी 50% है, और एबनी बॉडी वाले कितने आए, 44+6, वो भी 50% आए। बट दे डिड हैव सम रिकम्बिनेंट्स, जिसमें 50 में से भी 44% का रिसेसिव एंटीना था और 6% का डोमिनेंट एंटीना था। समझ आ गई व्हाट इज रिकम्बिनेंट? Yeah. An offspring that shows different combinations of characteristics from their parents, and this is the cross that has been done over here that you can see, which is exactly 50-50, या इसको हम 1:1 कहते हैं।
लेकिन 1:1 के अंदर भी 50 में भी 44 ऐसे थे, माना ये दोनों स्ट्राइप्ड हैं, 50 की 50 स्ट्राइप, लेकिन उनमें से स्ट्राइप में से 44 स्ट्राइप्ड ऐसे थे जिनका नॉर्मल एंटीना था, और 6 स्ट्राइप्ड ऐसे थे जिनकी ऐसी वो एरिस्टोपीडिया एंटीना भी था। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर जाते हैं वो कॉम्बिनेशंस। सो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन लोकाई इज मोर लाइकली टू टेक प्लेस इफ द जीन्स आर फर्दर अपार्ट, because there is more length of chromosome between them that can cross over, and you can use this to get an idea of the position of genes on a chromosome as well. The more recombinants you get in offspring, the more crossing over has actually taken place, and further apart the genes were. Got it? Yeah. And that is all for your dihabet cross. नेक्स्ट आपके पास पेपर नंबर 5 का कुछ पार्ट शुरू होगा, विच द काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। एंड उसके बाद वी हैव द लास्ट पार्ट विच इज नोन एज जीन्स प्रोटीन्स एंड फिनोटाइप। इधर एक दो फैक्टर्स को हमने डिस्कस करना है, और आपके पास फिर चैप्टर आई गेस नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कोशिश है कि खत्म हो जाए। वैसे हमने कर लिया आज आई गेस फोर्थ थर्ड या फोर्थ लेक्चर है ऑफ इनहेरिटेंस टुडे। ठीक है। एंड वी आर डन Yeah, विद I think, डायहेड्रल क्रॉस। yeah, I guess leaving the P5 other section, there's only two topics left. यस। So